ابھی میں نے افطاری کر کے نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد بس میں نے سوچا کہ پہلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں، کیونکہ مجھ سے رکا نہیں جا رہا تھا. روزے کے ٹائم پر میں تھوڑا بیزی تھی، افطاری وغیرہ بنانے میں. کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی افطاری وغیرہ بنانی تھی، اسی وجہ سے تھوڑا سا میں بیزی ہو چکی تھی. ورنہ میں اسی ٹائم ویڈیو بناتی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی. میں بات کر رہی ہوں غلام حسین کی. غلام رسول شاید ان کا نام ہے. غلام رسول، تمہاری میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی افطاری بناتے ٹائم. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. مجھے ریل میں بہت اچھا لگا کہ تم نے روبینہ سسٹر سے اور تم نے فوزیہ سسٹر سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی. انہوں نے جو کیا غلط کیا، جو بھی کیا نہیں کیا، مگر تمہیں جو میں نے بات کہی تھی، تم نے ایک بڑی بہن کی عزت رکھ لی، بڑی بہن کا مان رکھا، اور بڑی بہن کے کہنے پر تم نے یہ کام کر لیا. بہت بہت شکریہ تمہارا. کیونکہ ایسے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اور دل سے جو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں. تمہارے وہ کلام پاک کی تلاوت میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں. ریئلی آئی پراؤڈ آف یو کہ میں نے تمہیں بھائی کہا اور تم نے بھائی کا حق ادا کیا کہ ایک بڑی بہن کا کہنا مانا. پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی کی میں ایک چھوٹی سی کلپ اس کی اجازت سے میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں. مجھے یہ بات اس کی اتنی اچھی لگی، میرے دل کو چھو گئی ہے. اور میں پہلے آپ سے یہ کلپ پہ بات کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ سے بات ڈیٹیل میں کروں گی. السلام علیکم میرے سب پیارے بہن بھائیوں کو، سب کو ماہ رمضان مبارک ہو. ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم اپنی سسٹر پیاری سی فوزیہ جو لاہور میں رہتی ہے، ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں. انہوں نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اور میں ملتان والی روبینہ سسٹر سے بھی معذرت خواہ ہوں. لیکن جنہوں نے میرے ساتھ کیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو میں یہ سزا دوں گا. ان لوگوں نے بے غیرتی کی ہے. ہم نے اپنوں پہ بھروسہ کیا. فوزیہ سسٹر کو یہ ساری میری بیوی کی پکچر سینڈ کی ہے. میں ولاگ بھی نہیں بنا رہا تھا، ماہ رمضان تھا، میں روزے رکھ رہا ہوں. بس میں احسان مند ہوں. کبھی بھی میں اس سسٹر کا، فوزیہ کا، میں احسان اتاروں گا. ان لوگوں نے پہلے بھی مجھے بدنام کیا تھا، آج بھی یہ بدنام کر رہے ہیں. ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کسی کی بیوی کی فوٹو اٹھا کے کسی کو دو؟ حق بھی نہیں بنتا تھا. ولاگ میں گالی دے دیتا ہے بندہ، کوئی اور بات کر دیتا ہے، لیکن اتنی گھٹیا حرکت کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس وقت مجھے آواز اٹھانی تھی، لیکن اب دیر نہیں ہوئی، اب بھی اٹھانی پڑے گی. اس نے جو کیا ہے نا، چاہے میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں مجھے جو کچھ کریں، لیکن میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں یہ سزا تو اس کو ملے گی. تو آپ لوگوں نے اس کی بات سنی. مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی. جو انسان اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے نا، خدا بھی اس کو معاف کر دیتا. ہم بندے کون ہوتے ہیں؟ تو اس نے ایٹ لیسٹ روبینہ سسٹر سے اور فوزیہ سسٹر سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی. فوزیہ سسٹر، آپ کو جس نے بھی وہ تصویر اس کی وائف کی بھیجی ہے، اس کا نام ہمیں ضرور مینشن کیجیے گا. آپ اپنے ہی ولاگ میں بتائیے کہ وہ کون گھٹیا لوگ ہیں جب اس نے آج تک اپنی بیوی کو سامنے نہیں لے کر آیا. وہ ایک پردہ نشین عورت ہے، پردہ دار ہے، چاہے وہ نقاب کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، مگر غلام رسول نے کبھی بھی اپنی وائف کو میڈیا کے سامنے نہیں لے کر آیا چند پیسوں کے لیے. وہ اتنا بغیرت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو دکھا کر ولاگنگ کرے، اپنی بیوی کو دکھا کر وہ اتنا پیسہ کمائے. جس طرح سے یہ ہاں، مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں اور دوبارہ مجھے کامنٹ کریں گے کہ آپ ان کا کیوں ساتھ دے رہی ہو. دوبارہ اس نے وہی کیا، پھر پہلے بھی آپ کو گالیاں دی، یہ کیا وہ کیا. میں وہ تمام باتیں بھول چکی ہوں. میں نے بھی کل ہی میں نے کامنٹ پڑھا، اس نے کسی نے مجھے یہ کہا کہ آپ دوبارہ سے یہ شب صبا کے جو چاچو ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہو، دوبارہ ان کی تعریفیں کرتی ہو، دوبارہ آپ ان کے جا کے کامنٹ کرتی ہو اچھے، مگر یہ کتے کی دمیں کبھی سیدھے نہیں ہوگی. مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیسی کامنٹ کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے. آئی ڈونٹ کیئر.
मैं इंसान को देखती हूँ जो दिल से अपनी गलती मानता हो। सबसे बड़ा इंसान मेरे सामने वही है। सभी कहते हैं कि सदका टाउन का ही एक मेंबर है, मैं मानती हूँ, मगर ये 5 उंगलियाँ आपको बराबर लगती हैं? नहीं है ना 5 उंगलियाँ बराबर, सब उंगलियाँ डिफरेंट साइज़ की हैं। इसी तरह से हर एक ख़ानदान में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के इंसान होते हैं। ये उन सदका टाउन वालों के साथ था, मैं मानती हूँ, पहले वैसे ही था, मगर इसको अपनी गलती की सज़ा भी मिली है, क्योंकि इसके अपने लोगों ने ही इसको धोखा दिया, इसके अपने ही लोगों ने इसका गर्दन काटी, इसके अपने ही लोगों ने इसके साथ दगा किया। जिसके साथ इन्होंने वफा किया, उन्होंने ही उसके साथ बेवफाई की। Give me only 100 rupees because I am hungry. God bless you, please. Please help me. Understand my feeling. Okay ji, thank you so much. ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸਕੀ वो मुहावरा तो आपने सुना होगा ना कि घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि अपने ही लोग जो होते हैं ना वो आपको दगा देते हैं, अपने ही लोग जो होते हैं वो आपको धोखा देते हैं, वही लोग होते हैं जो आपके राज लोगों को बताते हैं। तो वो कौन से लोग होंगे जिन्होंने फौजा सिस्टर को इसकी वाइफ की तस्वीर भेजी, और फौजा सिस्टर से ये गलती हुई, उन्होंने गुस्से में ही, अगर मैं भी होती ना फौजा सिस्टर की जगह पे, मैं भी यही काम करती। ठीक है गुलाम हुसैन रसूल, मैं भी वही काम करती, क्योंकि जिस तरह से तुमने फौजा सिस्टर के लिए और वीरा सिस्टर के लिए जिस तरह से वीडियो बनाई थी, वैसी वीडियो अगर तुम मेरे लिए बनाते ना तो मैं भी तुम्हें इसी तरह से सुनाती। उन्होंने गुस्से में आकर तुम्हारी बीवी की तस्वीर लगाई, मगर वो तुम्हारे घर से तो लेके नहीं आई ना, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों ने काम किया। मगर एक बात जो तुमने अपनी वीडियो में कही ना, बिल्कुल सही कही है कि ऐसे धोखेबाज दगाबाज लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। इंसान एक बार माफ़ कर सकता है, 2 बार माफ़ कर, ये कहते हैं ना कि अपने अगर कुछ करते हैं ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अगर कोई गैर करता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर आपके अपने लोग, उन्होंने आपको धोखा दिया। आपकी बीवी की तस्वीर फौजा सिस्टर को आपके अपने रिश्तेदारों ने भेजा है। आपको पता लग गया ना किसने भेजा है? बिल्कुल आपके अपने ही गिरेबान में जो है ना, क्या आस्तीन का सांप कहते हैं उस लोगों को। तो ऐसे लोगों से आप डर के भी रहो, क्योंकि ऐसे लोग डंक मारने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आप उसके भांजे हो, भतीजे हो, भाई हो, कज़न हो या कौन हो। समझ आ गई ना? इस किस्म के जो सांड होते हैं ना, किसी को भी सींग मार सकते हैं। जहाँ पे सांड की बात आती है तो मैं आपको बता देती हूँ, सांड ने भी तमाशा करने में कोई भी परहेज़ नहीं किया। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि इस इंसान की जो आपने जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ गुलाम रसूल की, ये एक बहुत ही शरीफ इंसान है, छोटे छोटे बच्चे इसके मासूम से हैं। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ इसकी मदद कीजिए। ये गरीब इंसान है, कभी भी इसने पैसे के लिए अपनी बेटियों को, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, उनको कोई नाजायज़ तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं किया, राइट। कोई उनकी जिस्म की नुमाइश नहीं की, ना अपनी बीवी को सामने लेकर आया। ये कर सकता था जिस तरह से दूसरे लोगों ने अपनी बीवियों को, बेटियों को मीडिया के सामने लाकर पैसे कमाए, ये भी कमा सकता था। अभी आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक नया फेस रिवील हो गया इनके ख़ानदान का, राइट। वो भी लड़की जस्ट अभी शादी होकर गई है और उसका फेस रिवील कर दिया गया। अभी कुछ दिनों के बाद मुफस्सरा जो सुल्तान साहब की वाइफ है, उनकी अब फेस रिवील होगा। उसके भी तमाम कहते हैं नए व्लॉग्स बनेंगे। अभी उसने ऑलरेडी बना दिया उसने, यानी कि उसका जो चैनल मैंने भी कल ही देखा, उसकी वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं। और वो धड़ाधड़, मैं तो समझी थी बड़ी चुपचाप सी बच्ची, मगर उसकी बातों से लगता है कि नहीं भाई वो भी वही सी सदका टाउन की मेंबर है। जिस तरह से वो बातें कर रही, जिस तरह से व्लॉगिंग कर रही है, क्योंकि बचपन से इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से किस तरह से आपको व्लॉगिंग करनी है, क्या करना है। बचपन से अपने माँ बाप को देखती आ रही है, अपने आसपास चाचा चाची, मामा मामी सबको देखती आ रही है। पूरा ख़ानदान इनका व्लॉगर है, कोई छोटा व्लॉगर है, कोई बड़ा व्लॉगर है, मगर सारे के सारे ख़ानदान व्लॉगर ही हैं। अभी जनाब अब इसकी बात कर लेते हैं, जनाब ब्रांड के जो बड़े भैया हैं, यानी कि बंगाली बाबा जी।
बंगाली बाबा जी जादू वगैरह करते हैं, इन पर किसी ने जादू कर दिया है, इनकी टांग पे फिंसी निकल आई है, वो फिंसी बन गया है कैंसर, और वो कैंसर की जो बीमारी का इलाज है वो डॉक्टर हकीम के पास, वो क्या कहते हैं, हकीम लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो जनाब अब इनको फ़ौरन लेके जाया गया था शहर में बताया गया था कि ये 24-25 तारीख तक वहाँ रहने वाले, 1 हफ्ते तक उनका इलाज होगा, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और किसी एक भाई ने 50,000, दूसरी बहन ने 50,000 भेजे थे, उनको लेकर वो गए थे ऑपरेशन करवाने के लिए। वहाँ पे भी जाके उन्होंने अपने नंबर चलाए, अपने तमाम दुख दिखाए, तमाम रिपोर्टें दिखाई, और जैसे ही किसी और भाई बहन ने उनकी मदद की, फ़ौरन दूसरे दिन ही वापस अपने घर तशरीफ़ ले आए। मगर घर नहीं गए थे, अपने मामू के घर गए थे। भाई मुझे तो ये नहीं पता था कि ये जो मुखलिस भाई भैया जान है इतने बड़े डॉक्टर हैं, और उनके मामू तो उससे भी बड़े सर्जन निकले। वही मामू जिसका बेटा जो चो चो करके बोलता है नाक से, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, हम तो ठीक है, आप भी खैरियत से होंगे, जिनको अल्लाह ने बेटे दी दे बेटा दे दे, जिसको बेटी दी बेटी दे दे, हम तो मैंने कहते हैं, समझिए ना मैं उसकी बात कर रही हूँ, इनके इरफान शायद नाम उसका है। तो उसके अब्बा हजूर जो है, जो तबेले में काम करते हैं, गाय भैंस के गोबर उठाते हैं, जनाब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ के सामने बता दिया कि वो इसको बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। तमाम एक्सरे दिखा दिया गया है, MIR करवा के दिखा दिया गया है, तमाम मेडिसिन दिखा दिया गया, और उस डॉक्टर की भी रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्मॉल लिटिल प्रॉब्लम्स, और कहते हैं वो इट वाज लिटिल प्रॉब्लम, इट वॉज, आप जाके पढ़िए इस पे लिखा हुआ क्या है जी मम्मा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा लिटिल प्रॉब्लम। तो वो लिटिल प्रॉब्लम को उन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम करके आपके सामने दे दिया। और मामू जान भी बहुत तप के बैठे हुए थे। मामू जान ने कहा कि भैया आप लोग बहुत ख़राब लोग हो, स्पेशली जो हम रिएक्शन चैनल वाले, हम तो बहुत ही ख़राब है, हम तो दोज़ख में जाने वाले, दोज़ख की आग में जल के मरने वाले हैं, हमारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि हम उनकी सच्चाई बता रहे हैं, असलियत बता रहे हैं। जिस बंदे को इतनी प्रॉब्लम हो, 1 मिनट गलत कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। अक्सर ये बातें जो होती है ना, इन्हीं की वजह से सिर्फ हम ये हर चीज़ दिखाते हैं ताकि उनको भी यकीन आए कि वाकई ये तकलीफ में हैं। हमारे ऊपर जब वो ये बातें करते हैं, हमारे दिल को तकलीफ होती है। एक बंदा वो तो फिर उधर दुकाने वाली बात करे, या मुझे पता है या फिर ऊपर वालों को पता होता है, अल्लाह पाक जानता है, या मरीज को पता होता है, जो मरीज के साथ है उनको पता होता है। अब डॉक्टर से हम हर बंदे की बात नहीं करा सकते कि डॉक्टर खुद उनको बताएं कि हाँ ये मसला है। जी जी, तो इसीलिए हमने बाद डॉक्टर साहब की वीडियो बनाई। जो कुछ भी उन्होंने बोला, देखो वो बोल रहा है कि ऑपरेशन होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसके टांग के अंदर रेशा हो गया है खला पे, तो वो जो है वो क्या ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हाँ दवाइयाँ अगर चाहे 10 लाख की दवाइयाँ भी खिला देना इसको, जी, फिर भी वो रेशा खत्म नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ वो नाम ले रहे थे बीमारी का, हमें तो भूल गया। उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी दवाइयाँ इसको खिला लें, ये ऑपरेशन से ही सफाई होगी, इसमें फिर हड्डी में भराई होगी, उसके बाद फिर वो सीमेंट उनका कोई अपना होता है ना, सीमेंट जैसे बता रहे थे कि एक होता है बाउंड सीमेंट, आप कहते हैं ये मकान वाली, दूसरा वो डॉक्टरी बाउंड सीमेंट होता है। उसमें कोई और दवाई कह रहे थे, वो भी दवाई महंगी है, महंगी तरीन दवाई है केमिकल, वो मिला के उसमें जैसे सीमेंट प्लास्टर करते हैं ना, उसके अंदर हम भराई कर देंगे ताकि हम जब सफाई कर लेंगे वो खला जो हड्डी में रहेगा वो हड्डी को फिर नुकसान ना हो, क्योंकि वो पहले ही खाई जाती है। उसकी रुकावट के लिए एक दवाई भरेंगे, दवाई ताकि वो मजीद आगे ना बढ़े, मजबूती के लिए वो करेंगे। वो इसलिए होती है कि डर हमें इस चीज का और परेशानी है, जैसे कि आपने देखा 2-3 दिन है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में अकेले, हम इधर पड़े हैं, हमारे पास इतनी खर्चा भी नहीं है, और ऊपर से डॉक्टर ने ये एक ऑपरेशन नहीं होगा, ये 2 ऑपरेशन होंगे। फिर वो निकालने जैसे ये भाई बता रहा है ना, पैसे पहले वो ऑपरेशन करेगा, हड्डी को साफ करेगा, देखेगा, खोलेगा कितना खराब है, कितना सफाई करनी है, कितना काटना है, क्या करना है, उसके अंदर फिर ये भराई करेगा दवाई के जरिए। फिर दोबारा ऑपरेशन जो होगा वो मैंने वाज़ेह तौर पर आपको पूछा है
उन्होंने कहा है कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, वो चीज़ जो दवाई हम रखेंगे अंदर वो निकालेंगे, जी उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो खला पूरा होता है जी तो ठीक है, वरना किसी और जगह से ना हड्डी निकाल के उसमें फिर भरनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज़ जो उन्होंने बताई है ना, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि हड्डी जिस्म के और इसे हड्डी निकाल के और इसे में रखें। वो दोबारा जब ऑपरेशन होगा, पहले तो सफाई का होगा, जी दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो, जी वो दोबारा ऑपरेशन कहते हैं लाजमी है, क्योंकि वो चीज़ निकालनी पड़ेगी जो हम भरेंगे। हाँ तो ये सब जो बात आपने बताई है फिर इधर अपनों को वो क्या कहते हैं? मशवरा क्या देते हैं, क्या सोचा है उन्होंने? अहमद को मैंने बताया था, अहमद ने बोला है कि पहले तो आप ऐसा करो कि फौरी ऑपरेशन का इस डॉक्टर की राय ले लिया है, जी टेस्ट आपके पास है सारे, जी MRI है, ब्लड टेस्ट है, वो भी सारा कुछ आपके पास है। जी आप बैठे हो उधर तो 1-2 डॉक्टर ना हाँ जी बहावलपुर में और किसी को चेक करवा रहे। मामू जान बहुत बुरी तरह बिगड़ रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था कि हमें ना गर्दन से पकड़े और सीधा फांसी पे चढ़ा दे। मामू जान हमें नहीं पता था आप इतने बड़े वो डॉक्टर हो, इतने बड़े सर्जन हो, और वो स्पेशली हम लोगों को बताने के लिए कि भाई वो रेल में बहुत बीमार है, उसकी टांग काटनी पड़ेगी, उसके पाँव में कैंसर हो चुका है, और जनाब इतने बड़े बड़े मेडिसिन, इतने बड़े बड़े जो MIR की रिपोर्ट्स और इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स हैं वो हमें दिखाए गए हैं। तो हम मान लेते हैं, हम कब कह रहे हैं कि बीमार नहीं है, हमें पता है उनके टांग में फिंसी निकली हुई है, और फिंसी भी जो है ना इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। अगर कोई चूंटी अगर किसी हाथी के कान में घुस जाए ना तो वो हाथी चिलबिला उठता है, इतनी तकलीफ देती है वो छोटी सी चूंटी कि वो हाथी मर भी सकता है, समझिए ना। बिल्कुल इसी तरह से वो छोटी सी फिंसी जो है वो हमारे जो ढोंगी बाबा हैं, उस ढोंगी बाबा को मौत की घाट भी उतार सकता है, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। तो भाई हमने कब कहा कि आप अपनी रिपोर्टें दिखाएं, हम तो मान गए थे आपके पहले व्लॉग में, आपका पूरा ख़ानदान बीमार पड़ा हुआ है, किस के नाम लिया जाए। तो जनाब आपकी अम्मा हजूर, आपके अब्बा हजूर, आपकी खाला जान, आपकी फुप्पो जान, इनके मैंने भी एक और 2-3 व्लॉग देखे, पता नहीं कौन मकसूद है कौन मसूद है, फलाना टिमकाना, जो वो है अस्तगफारुल्लाह। अल्लाह में तमाम लोगों को सेहत अता फरमाए जो रेल में बीमार है, और जो लोग नकली बीमार हो रहे हैं अल्लाह उनको हदायत दे। मैंने ये वीडियो सिर्फ अब आज की जो बनाई है, मैंने सिर्फ ये ग़ुलाम रसूल के लिए बनाई है, और उसका शुक्र अदा करने के लिए बनाई है कि अल्लाह में उसको लंबी उम्र दे, उसकी फैमिली को खुशियाँ अता फरमाए, उसकी बेटियों की किस्मत अच्छी करे। अगर कोई मेरे बहन भाई रेल में उसके किसी गरीब की हेल्प करना चाहते हो तो इसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। मैं कभी किसी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इस बंदे के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये रेल में गरीब है, सदका टाउन का ही हिस्सा है मगर रेल में हकदार है। तो अगर हो सकता है तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर अच्छे कीजिएगा, और बताइएगा मैंने ये बात सही की है नहीं की। अल्लाह हाफिज़।